God! No! आंखों सुनते कानों को शहजाद बाट की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और यूएसए ने बगैर किसी रीज़न के जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जंग तो स्टार्ट कर दी है, वार स्टार्ट कर दी है, लेकिन हर वार के अंदर यूएसए के मोस्टली जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ये शो किया है कि वो इस वार के अंदर नहीं कूदना चाहते। लेकिन क्योंकि प्राइम जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, एरोगेंट प्रेसिडेंट हर वार की तरह, यहाँ पे वो मजबूर किया जाता है सोल्जर को अगेंस्ट अदर कंट्री। वो जगह भी हमने जो है देखा है, यूएस जो सोल्जर है उन्होंने बगावत भी की है और मोस्टली प्लेस पे उनकी आंखों से आंसू भी रवां हो गए हैं, जो बगैर किसी रीज़न के मारे जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर और इस तरह एशिया के अंदर यूएसए सोल्जर के हाथों कम से कम 35 to 40 लाख इनोसेंट लोग जो है मुख्तलिफ अदवार में जो है शहीद हुए, मारे गए इन फौजियों की जानब से। लेकिन हर बार इनकी आंखों में आंसू रहे हैं। मोस्टली ऐसे सोल्जर हैं जिनकी आंखों में आंसू रहे हैं और मुख्तलिफ दौर के अंदर मुख्तलिफ सोल्जर ने जो है बगावत की है। उनमें से एक सोल्जर ये है, अभी भी जो है ईरान के ऊपर तो उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी है बगैर किसी वजह के, जिसमें 70% जो पॉपुलेशन है यूएसए की और जो सोल्जर हैं वो नहीं ये जंग करना चाहते, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है जैसे माजी के अंदर इनको मजबूर किया गया। इसी तरह एक ये सीनियर जो है ऑफिसर है जिसने यूएसए सेनेट के अंदर ये कहा है ये हमारी जंग नहीं है, ये इजराइल की जंग है, हम क्यों लड़ें। उसने ये भी कहा कि आपने गैर कानूनी तरीके से ग्रीनलैंड और उसके अलावा बाकी कंट्री का उसने हवाला दिया और बताया ये इलीगल है, हम किसी की जंग क्यों लड़ें, मासूम शहरियों को क्यों वहाँ पे मारें। ये आप साइट पे वीडियो चल रही है, ये समाप्त फरमाएं। The reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to fight its sons and daughters. और जब ये यहाँ पे ये कुछ कहते हैं तो आगे जाके जो वहाँ पे सोल्जर हैं इसका बाजू भी ब्रेक कर देते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे वीडियो बनाने वाले जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनको रोका नहीं जाता, वो वीडियो बनाते हैं और आप फाइनल तक देख सकते हैं क्या होता है इस वीडियो के अंदर। Please stand up as a Marine. Stand up for America. Now, no one wants to fight for Israel. Senator broke his hand. The senator broke his hand. He's a Marine. Somebody come help him. Control your Senate. Look at you guys. You're robots. You won't even look back. Look at you guys. You're like robots. Oh my God. What is happening? And you're not even looking back. Any of you 4-star generals. Oh my God. What is happening right now? I front robots. Shame. Shame. Oh my God, you guys. What did I just see? I'm getting out of here. Fine. Everybody sit down, please. Oh my God. What is happening? No, it's not. Oh my God. Oh my God, you guys. Open it up a little bit just to like see the gap. Hey guys, clear the hallways. Out. Clear the hallways. Clear the hallways. Please. Clear the hallways, please. Can you help him, please? Yes, please go in there. Please clear the hallways. Oh my God, what happened? His hand got totally smashed. Oh my gosh. Oh my gosh. Why are you getting arrested? From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, Palestine will be free. And what about this war in Iran? Oh my God. His arm. Ah, my arm is fucking broke. My left arm is broke. Oh my God. Hey, you guys, come on. I need you to move. Stop. Hey, Ryan, stop. he's fighting for you, not for him. They broke his arm. Oh my God. It's totally broken. Oh man. Please, can you get him some kind of medical attention? Yes, we are. Oh my God. You are straight. I'll step back, please. Please Can step you back. get Keep him the some walk way medical open. attention, Excuse me, please? sir. No, he broke his arm. Okay, we're trying to do inside then. Josie, what happened? We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interrupt the hearing? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. And what did they do to him? They pulled him out, got his arm trapped in the door, broke his arm, like tackled him to the ground. It was a very, very intense situation. What? I couldn't hear him, but he's my friend, and he couldn't stand what they were saying anymore, so he spoke up. No, he's actually running for Senate in North Carolina. His name is Brian McGinnis. No, I don't. And they all just kept their eyes forward, those cowards. Free Palestine. Fuck the war in Iran. Yeah, free record. Free record. Guys, free record. All you want is actually please cooperate with us. Just go behind the line. America does not want to fight this war in Iran, and the soldiers don't, right? अच्छा, आपने ये देख लिया कि जो इस वक्त अमेरिका के अंदर है वो खलबली मची हुई है, मायूसी है। ट्रम्प भी अपना जो होश व वास है खो बैठा है।
कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, कभी क्या बोंगियाँ मारता है, कभी क्या करता है। जब उससे क्वेश्चन किया जाता है वो भाग जाता है। सेम है USA के अंदर भी सेम कंडीशन चल रही है, जहाँ पे उनके वज़ीर दिफा ने कहा अगर ये 10 दिन और जंग रही तो अमेरिका अपनी जो क़ुव्वत है वो खो बैठेगा, अमेरिका के पास जो ज़ख़ीरा है मिज़ाइल वगैरह वो खो बैठेगा। ये किसी की जंग है, अगर हमने स्टॉप न की तो अमेरिका बहुत सारी अपनी जानें भी गवा बैठेगा और उसके साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को। अभी अमेरिका खिलाट का शिकार है, दूसरी जानब ईरान इतने स्ट्रांग और इतना जो है पावरफुल तरीके से खड़ा है कि आने वाले 1 साल भी अगर वो जंग लड़े उसको ये मुल्क नहीं हरा सकते। अमेरिका या आप कह लें इजराइल नाम नहात, ये उसको नहीं हरा सकता। इसके साथ साथ अमेरिका को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि उसके साथ जो अदर ममालिक जिनके वो समझ रहा था कि वो उसके साथ है, लेकिन उन्होंने जो है ब्रेक कर दिया है, उन्होंने इनकार कर दिया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, उसके अलावा जो है बाकी काफ़ी सारी कंट्री हैं जिसने अमेरिका की इस बात को टोटली उसके अगेंस्ट चला गया। और चाइना ने यहाँ पे जो है अपना स्पेशल सफ़ीर भेजने के लिए जो है गल्फ़ कंट्री से रब्ता किया है। रशिया खुल के सामने आ गया है। इवन जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है किम जोंग, उसने ऑफ़र किया है अगर कोई मिसाइल वगैरह चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट दूंगा जो इसराइल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होंगे। और उसने ये भी वार्न किया है अगर मेरे किसी एक शहरी को भी नुकसान पहुंचा जो ईरान के अंदर मौजूद हैं तो फिर इसराइल का जो है बचना नामुमकिन है। मैं बगैर किसी सोचे समझे इस जंग के अंदर दाखिल हो जाऊँगा। किम जोंग की बात करें, ये वही शख्स है जिसने जो है मिसाइल का बटन अपने हाथ में उठा के USA के जो वाइट हाउस में चला गया था और वहाँ पर उसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि अगर आप सोच रहे हो वेनेजुएला या ग्रीनलैंड की तरह आप हमें भी काबू कर लोगे तो आपकी गलतफहमी है। तो मेरे हाथ में ये जो बटन है ये मिसाइलों का है, तो दुनिया से पूरा जो है आपका जो नक्शे पे आपकी जो एक कंट्री है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एक बटन प्रेस करने से। उसने भी कूदने का ऐलान कर दिया है। अब मिडल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी जो है माहौल ख़राब हो चुका है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और इसी के साथ साथ आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।